let's start. I'm going to read from the book of Psalms. And it says, praise the Lord, praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heaven. Praise him for his mighty works. Praise his unequaled greatness. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. With this beautiful thought, I'd like to welcome all of you. I can only see visual like Helena Pupu, Mamu Mami, Babu, and I think this is Teddy. Yeah. And Mervin and your daddy. I'd like to welcome once again for this Vespers evening from Roorkee Group. Before we could begin, I'll ask Sedu Mamu to offer the prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सबत शाम के लिए, वेस्पर मीटिंग के लिए, जब हम जूम मीटिंग के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से अपने आप को जोड़ सकते हैं और जोड़कर आज के सभा में हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं। अभी जब हम इकट्ठा हुए हैं, हर एक को तो नाम बनाम आशीष दे, हर एक को तू उनके काम में सहायता मदद अगुवाई कर, और धन्यवाद देते हैं कि हर एक कोई आज के इस साबत वेलकम मीटिंग में जमा हो सकते हैं। सारा कार्यक्रम आज का है तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो परिचालना करेंगे उस पर तो आशीष दे, अच्छी तरह से सारा प्रोग्राम चलाया जा सके। जो आज का वक्ता होंगे उनको भी तेरे हाथ में रखते हैं कि वे आज हम सबको तेरा वचन इस प्रकार से सुनाएंगे कि हम लोग तेरे वचन के गंभीरता को महसूस करके वचन में सदा जीने का एक संकल्प ले सकेंगे। और जितने कार्यक्रम और जो भी कार्यक्रम सब तेरे हाथ में सौंपते हैं। पापों को क्षमा किया है, हमें ग्रहण किया है और हम सब के साथ सदा रहता है। इस वक्त हम बीमार, दुखी और तकलीफ से जी रहे लोगों को भी याद करते हैं। जितने लोग तकलीफ में हैं और बीमार में हैं और उनका कोई उपाय नहीं है, ऐसे सब लोगों को तू चंगाई बख्श दे। तो अपना हाथ बढ़ा। जब तू इस दुनिया में था तेरे द्वारा बहुत से लोग चंगे किए गए। अभी मदद कर। हम प्रार्थना के द्वारा अपना पेटिशन तेरे पास लाते हैं और ये सारे लोग जहाँ जहाँ हम जानते हैं उन सबको तू अपना हाथ उन पर रख और उसको चंगाई बख्श दे। ये सब प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, देकर सुनो, ग्रहण कर। आमीन। सॉन्ग सर्विस के लिए हम जेफरी, जेरी और जेफेंड्री को बुलाएंगे। The first song that we're going to sing is 526, 526. If you have your church hymnal or in the mobile you have it, you can screen it. 526, Because He Lives. And the Son, they call him Jesus, seek him to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth living just because He lives.
to hold a newborn baby and feel the pride and joy it gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertainty because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. For next song, we'll sing hymn number 528, A Shelter in the Time of Storm. The Lord, our rock in every eye, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim man, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. Good along the foes of pride, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. The raging floods around us beat, a shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, a refuge here, a shelter in the time of storm. Be thou our help forever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim land, a shelter in the time of storm. next song we'll sing 317. Lead me to Calvary. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy throne crown room, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me.
Let me like Mary through the gloom, come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget that ceremony, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee. Even thy cup of grief to share, thou hast come for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. I like all of you for singing with us. And for opening prayer, I'll request Hema Bhabi to offer the prayer. Yes, happy Sabbath. Happy Sabbath. Let's look to the Lord in prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, Lord, we come to you this Sabbath evening once again. We thank you, Lord, for giving us this opportunity to come at your feet, to study your word and to listen to what your Spirit wants to teach us this evening, Lord. We pray that your presence would be amongst us and that you would prepare our hearts to receive your words. Be with each one of us and bless us as we continue to learn from you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Thank you, Bhabi. Let's go for a special song. If Dr. Kisku, Bhaiya and Bhabi, if you're here, at this time we give them the time for the special song. Okay, good evening, everyone. A happy Sabbath to you all. And as we were thinking of sharing a special song this evening, we wanted to share a song that will probably make a meaning. And this is a verse from the Bible found in Isaiah 40:31. Very popular verse. It says, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." A wonderful promise, and we pray, Lord, that Lord will teach us to wait. So we will sing this song, and probably we will also like rest of you to learn this and join us as we sing, and we can sing it together. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Very simple song. We'll sing it once again. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Can we all
all join together and sing as wherever you are, and think about this wonderful promise that God has given us, that we can wait on Him and we will renew our strength and become as strong as eagles. And we can also pray that Lord will teach us to wait on Him. We'll sing this song again twice, and we'd like to invite every one of us to join as we sing this. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They'll walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Okay, thank you for allowing us to share this song. And back to Lali. I would like to thank Mamu and Mami for that wonderful song. And we are actually having some technical issues, so we'll conduct the quiz after the message. Over to George, Mami. Good evening, everybody. Happy Sabbath. I take this privilege to welcome all of you for this Vespers. And I hope that the time that we spend for some time will be beneficial for each and every one of us. And I am going to share with you the Word of God. And I hope that everybody will be able to understand. मैं आप सबों को आज के शाम के वेस्पर्स मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम उनके लिए आज वचन तैयार कर सके हैं और आप लोगों के बीच में इस वचन को बांट सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा की आशीष हम सब पर उंडेली जाएगी जब हम ईश्वर के वचन को सुनेंगे। तो ये हमारा जो हफ्ता बीता वो बहुत ही बिजी था। We were very busy past week because we started our new session for the year 21-22, and we started off with our registration. And today, of course, is a holiday since it is Good Friday, so we did not have school. And it was so relaxing to have a day off. But more importantly, I was very happy that we have Sabbath. That is the week's rest that we have every week. That was the more important news. सारा दुनिया आज गुड फ्राइडे को मना रहा है और ईश्वर के मृत्यु, यीशु मसीह के मृत्यु को याद कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज शाम को आप लोग के बीच में क्या बोलूं, और जब मैं आज शाम का मैसेज तैयार करने की कोशिश कर रहा था तो मुझको एक टॉपिक मिला है जिसको मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। तो एक सवाल के साथ मैं आज शाम का मैसेज प्रस्तुत करना चाहता हूं, और ये सवाल ये है कि इस दुनिया में एक मसीही होने के नाते हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या है? What is the greatest work in this world as far as being a Christian is concerned? So the question was कि what is the greatest work in the world as Christians? What is the greatest work in the world? एक मसीही होने के नाते सबसे बड़ा काम हमारे लिए इस दुनिया में क्या है? अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मार्कुस का पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 15 पद। जिस किसी को भी मिला है वो मेरे लिए पढ़ सकता है, अगर मेरे से पहले खोलता है तो, लेकिन अगर मुझको पहले मिल जाता है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
मत्ती 16 अध्याय उसका 15 पद। मत्ती नहीं, मरकुस। कोई भी नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। अगर आपके पास इंग्लिश में भी है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इफ यू हैव इट इन इंग्लिश यू कैन रीड एज वेल। आई एम गोइंग टू रीड दैट इन हिंदी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो उत्तर हमारे लिए बहुत ही साफ और सरल है कि हमें एक मसीही होने के नाते सारी पृथ्वी में ईश्वर का सुसमाचार को प्रचार करना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, बहुत ही आवश्यक, नेसेसरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कार्य है। और इस कार्य को करे बिना एक मसीही जीवन हम नहीं जी सकते। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग पिता, जब हम तेरे वचनों में से बातचीत करते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, तू हमें आशीष दे और पवित्र आत्मा को यहाँ उपस्थित होने दे ताकि वो हमारे मन और हृदय में परिवर्तन ला सके और तेरे वचनों को समझ करके हम तेरे बातों को इस दुनिया में प्रचार कर सके। ऐसा हर एक व्यक्ति को आशीष दे जो यहाँ पर उपस्थित है। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। एलन जी वाइट कहती है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर में एक जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीही कहलाता है उसके ऊपर में एक जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को बताए कि यीशु मसीह कौन है। जरा सोचे कि आपने किन किन को यीशु मसीह के बारे बताया है। क्या आपने सिर्फ चर्च में, या सिर्फ साबत स्कूल क्लास में, या सिर्फ अपने काम करने के स्थान में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया है? जरा सोचे कि आपने किन किन लोगों को किन किन अवस्था में, किन किन परिस्थितियों में यीशु मसीह के बारे में बताया है। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है, जिस प्रकार से हमने अपना वचन पढ़ा मरकुस 16 अध्याय उसका 15 में, कि तुम जाओ और ईश्वर का सुसमाचार सारे लोगों को जो इस जगत में है उनको सुनाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हर एक मसीही व्यक्ति के कंधों के ऊपर में कि वो यीशु मसीह का प्रचार करे और लोगों को यीशु मसीह का चेला बनावे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो भी यही किए। वो कभी भी आराम से नहीं बैठे क्योंकि उनके कंधे में भारी जिम्मेदारी थी। He had a very serious responsibility on his shoulders because he had come not only to sacrifice himself on the cross and give us salvation, but he also had come to preach the word that will lead people to salvation. यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आए, सिखाने के लिए आए, चेले बनाने के लिए आए। यीशु मसीह के साथ हम भी को लेबरर्स है, इंग्लिश में शब्द है को लेबरर। हम लोग यीशु मसीह के साथ काम करते हैं लोगों को प्रचार करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक मसीही परिवार में है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक मसीही अपने आप को कहलाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के लिए काम कर सकते हैं। जब भी हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, दुनियादारी टॉपिक के ऊपर में अगर हम सोचें, जब हमें एक प्रोफेशनल तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे ऑफिस में या हमारे क्लास में या हमारे स्कूल में या हमारे कोई भी क्षेत्र में जहां हम काम करते हैं, हमें जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हम अपना पावर पॉइंट्स तैयार करते हैं, हम अपना स्लाइड्स को ठीक करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, इंटरनेट से टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान देते हैं और अपना टॉपिक को जानते हैं ताकि हमारा स्पीच डिलीवरी क्या हो, परफेक्ट हो। हम लोग बहुत टाइम से उसकी तैयारी करते हैं और जब हम अपना स्पीच डिलीवरी देते हैं और जब वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाता है स्टेज ऊपर में खड़े होके या अपने कलीग्स के बीच में या अपने टीम मेंबर्स के सामने, जहीं कहीं, या कोई काम ही क्यों करना ना पड़े हमें, जब वो काम अच्छी तरीके से हो जाता है तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। वी आर सैटिस्फाइड। हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है, मेहनत का फल हमें मिला है।
इसी प्रकार से जब हम ईश्वर का काम करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ईश्वर का काम कर सके। और जब हम ईश्वर का काम करते हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। वी हैव टू डू आवर रिसर्च वर्क, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू डू द वर्क ऑफ क्राइस्ट। ऐसे ही उठ करके हम ईश्वर का काम नहीं कर सकते। ये एक इम्पोर्टेंट काम है, ये एक बहुत ही आवश्यक काम है, जिसका जिम्मेदारी हम सबको को दिया गया है। किसी एज ग्रुप में हम क्यों ना हो, छोटे सा बच्चा या बड़ा या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमारा परिवार का, सब कोई कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है। कुछ ना कुछ तो बहुत छोटा शब्द हो गया, ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकता है, क्योंकि हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। अगर हम इस काम को नहीं कर रहे हैं तो हमारा बाकी सारा काम व्यर्थ है। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह का काम कर सके। अगर क्रूस को देखें, इफ यू लुक अपॉन द क्रॉस, अगर हम क्रूस को देखते हैं तो क्रूस को देख के हमको क्या समझ में आता है? आप जवाब दे सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं, बहुतों को ये जवाब पता है, लेकिन ये विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस को देखने से हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इस जगत के पापों के लिए बलिदान किया। क्रूस के ऊपर में उसको मार डाला गया, क्रूस के ऊपर में उसने अपने आप को बलिदान किया। क्रूस एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारे जीवन के लिए। जब हम क्रूस को देखते हैं, हमें एक संदेश मिलता है। देयर इज अ मैसेज इन द क्रॉस। एंड व्हाट इज द मैसेज इन द क्रॉस? आप लोग जवाब सोच रहे होंगे। मैं आपको 2 मिनट नहीं, मतलब 2 सेकंड समय देता हूं जवाब सोचने के लिए, और 2 सेकंड खत्म हो गया है। मैं बोलना चाहता हूं कि क्रूस जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम लोग खरीदे गए हैं। कैसे खरीदे गए हैं? ईश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। वी हैव बीन बॉट बाय अ प्राइस, दैट इज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो अपने आप को बलिदान करे, ताकि हम बचाए जाए। कैसे? उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के बहाने के द्वारा हम खरीदे जाते हैं। वी आर बॉट बाय द प्राइस ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम खरीदे जाते हैं तो हमारा जिम्मेदारी बन जाता है। हम चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह के हो गए, हम उसके प्रॉपर्टी हो गए। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं और यीशु मसीह का हो जाते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते। We can't stay silent. We have to speak the word of God. हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बोलना है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम देख पाते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। Prophecies are being fulfilled at the moment as we speak right now. हम घटनाओं को देखें, बाइबल स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा समय इस दुनिया में गिना हुआ है। बहुत कम समय के लिए इस दुनिया में हम हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम आज एक संकल्प लें कि अगर हमने आज तक इस दिशा में नहीं सोचा है तो कृपया करके सोचने लगे। हालांकि मैं गलत हूं इस वाक्य को कहने के लिए, क्योंकि हम में से सब कोई जो यहाँ पर बैठे हैं, सबों ने इस टॉपिक के ऊपर सोचा है ज़रूर, और इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी रिमाइंड करने की आवश्यकता होती है, एक रिवीजन की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा जोश कभी कभी ठंडा हो जाता है और हम ईश्वर का काम करने भूल जाते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण भी है। देयर आर मेनी रीजंस दैट लीड अस टू बिकम कोल्ड, और टू बी मोर एग्जैक्ट आई कैन से ल्यूकवार्म। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपने काम के बोझ को सोच करके हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपने फाइनेंशियल हालत के बारे में चिंता करके हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और हमारे जीवन में प्रायोरिटीज हो जाती है। हम
जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको नीचे कर देते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है उसको ऊपर कर देते हैं, और वो हमारा प्रायोरिटी बन जाता है। हम मनुष्य हैं और हम दबाव में पड़ जाते हैं और हम ईश्वर को बहुत समय भूल जाते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो तुम थके हुए हो, अगर तुम बहुत तकलीफ में हो, तो क्या करो, अपना जो तकलीफ है मुझके ऊपर डाल दो और मैं तुमको आराम दूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर में आराम है, यीशु मसीह में विश्राम है। हम चाहते हैं कि अपना बोझ हम अपने आप उठाए, कोशिश करें, संघर्ष करें, और नहीं सकने से हम थक के गिर जाए, हार जाए और हताश और निराश हो जाए। शैतान एग्जैक्टली यही चाहता है। शैतान चाहता है कि हम थक जाए, शैतान चाहता है कि हम ये सोचे कि हम बहुत बड़ा पापी है और हम ईश्वर के पास जाने योग्य नहीं है, और हम गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि इट्स ओके, जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं लगता है यीशु मसीह हमें ग्रहण नहीं करेगा। बहुत बड़ा झूठ शैतान हमारे जीवन में डाल के रखा हुआ है। वो कहता है कि तुम पापी हो और तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है। शैतान कहता है कि तुम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, तुम जैसे हो वैसे रहो। यीशु मसीह कहता है तुम पापी हो, नो डाउट, लेकिन मैंने अपने आप को बलिदान करके तुम्हारे सारे पापों को मिटा दिया है। एंड दैट इज अ प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस, इस प्रतिज्ञा को हमें भूलना नहीं है। इस प्रतिज्ञा को हमें भूलना नहीं है। और जब हम इस प्रतिज्ञा को अपने मन और हृदय में हर समय बरकरार रखते हैं, तो पाप में क्यों ना हम पड़े, हम फिर से पाप के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ के साथ, और यीशु मसीह के काम में हम अपने पूरे जोश के साथ लगेंगे। और यही यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है। लेकिन यीशु मसीह का काम जो है हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे मन और हृदय में प्रेम नहीं है तो यीशु मसीह का काम हम नहीं कर सकते। If we don't have the love of Jesus, we will not be able to do the work of God. क्योंकि प्रेम जो है वो की इंग्रेडिएंट है, बहुत ही आवश्यक सामग्री, बहुत ही आवश्यक नहीं बोलेंगे, सबसे आवश्यक सामग्री यीशु मसीह और हमारे बीच का जो रिश्ता है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह का प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर आप खीर खाते हो और खीर में अगर आप शक्कर नहीं मिलाते हो तो वो खीर खीर नहीं कहलाएगा, पता नहीं कुछ और कहलाएगा, और कोई उसको खाने पसंद नहीं करेगा। मेरा बहुत फेवरेट है पानी पूरी। अगर हम पानी पूरी खाएंगे और उसमें खटाई नहीं है तो पानी पूरी सबसे वाहियात पानी पूरी इस दुनिया का होगा। तो कोई चीज को संपूर्ण होने के लिए की इंग्रेडिएंट होना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम करने के लिए जो की इंग्रेडिएंट है, जो सबसे आवश्यक सामग्री है, वो है प्यार। और यीशु मसीह का प्यार हमें दुनिया को बताना है। लेकिन हम यीशु मसीह का प्यार के बारे में दुनिया को कैसे बताएंगे जब हमारे परिवार में ही प्यार नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग सिचुएशन। तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्यार तो जरूरी है, लेकिन क्या हमारे परिवार में यीशु मसीह का प्यार है? क्या हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, क्या हमारे पति और पत्नी या हमारे बच्चों के बीच में यीशु मसीह का प्यार है या नहीं है? कि हम अपना जीवन एक कंपटीशन के रूप में जी रहे हैं कि हम अगले से बेहतर है, या अगला सोचता है कि हम इससे बेहतर है। एक कंपटीशन के साथ साथ हम लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि हम तुमसे बेहतर है, तुम हमसे बेहतर नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तुम जो कह रहे हो गलत हो। और इस चक्कर में क्या है कि हम लोग जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो आवश्यक सामग्री जो हमारे परिवार को बांधे रखता है, उसको हम डालना या मिलाना भूल जाते हैं। दैट इज द लव ऑफ जीसस, यीशु मसीह का प्यार, प्रेम। तो कृपया करके विनम्र विनती है मेरी कि इस प्यार को, इस प्रेम को अपने परिवार में बरकरार रखें। नो डाउट वो है, लेकिन थोड़ा डीपली सोचे कि वाकई में हम यीशु मसीह का प्यार अपने परिवार में देख पाते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने रिश्ता को निभाने के लिए हम चूक जाते हैं। कभी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम झगड़ लेते हैं,
कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं, जिसके चलते परिवार में दुख या तकलीफ या झगड़ा हो जाता है। एक मसीही होने के नाते, यीशु मसीह के परिवार का मेंबर होने के नाते इन सारी चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो कृपया करके अपने परिवार वालों से आप सुलह कर ले, ताकि दुनिया के काम में जो हम हाथ बता रहे हैं यीशु मसीह के प्रचार के लिए, वहाँ पर हमको कोई प्रकार का बाधा ना मिले। दुनिया से हमें हेट्रेड मिलेगा ज़रूर, लेकिन अगर परिवार से हमें हेट्रेड मिलता है तो हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। तो परिवार को सही करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 4:21, अगर आपके पास बाइबल है तो इस थॉट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं पहला यूहन्ना आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कोई भी पढ़ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर मुझको पहले मिल गया तो मैं पढ़ दूंगा। पहला यूहन्ना 4:21, पहला यूहन्ना 4:21 किसी को मिला है? नहीं मिला है, कोई बात नहीं, 21 में है। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख पाएंगे। पहला कुरिन्थी 13 जो प्रेम का पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कोई जानते हैं, लेकिन कृपया करके आज शाम को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो जितना कुछ हमने पाया है इस दुनिया में वो कुछ नहीं के बराबर है। उदाहरण देने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इफ़ वी आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, वी हैव लॉट्स ऑफ डिग्रीज, all the degrees that we can achieve by this administrative and education system of this world. We have collected all the education and we have all the certificates and the degrees, but we don't have a good behavior. Then those certificates and degrees are nothing but piece of paper. They are of no meaning. उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में प्यार, ईश्वर का प्रेम नहीं है तो हमारा और कुछ होना का कोई महत्व नहीं है। तो प्रेम को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता से ईश्वर का प्रेम, अपने भाई बहन से ईश्वर का प्रेम, अपने पति या पत्नी के बीच में ईश्वर का प्रेम, बच्चों के बीच में ईश्वर का प्रेम, पड़ोसियों के साथ ईश्वर का प्रेम, फिर उसके बाद हमारे समाज के बीच जो हमारा रिश्ता है वहाँ पर भी ईश्वर का प्रेम दिखाई देना चाहिए। और जब फाइनली हम लोगों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें तो वहाँ पर भी उनके बीच में हमारे जीवन से यीशु मसीह का प्रेम झलकना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर कमीशन्ड फॉर, इसी के लिए हम चुने गए हैं। सो कमिंग टू द इनिशियल क्वेश्चन, जो सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन दिस अर्थ? द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन दिस अर्थ is to spread the gospel of God, but that is impossible without the love of God in our lives. तो बहुत ही आवश्यक है कि हमें यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में और साथ साथ हमारे परिवार में बरकरार रखना है। तो यस, अगर हम यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं तो हम अपने पड़ोसी, अपने परिवार, अपने सहपाठी लोग से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। एक टेक्स्ट में देख रहा था जो हमें जकरिया की पुस्तक में मिलती है। जकरिया, वो भी एक प्रतिज्ञा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जकरिया इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जकरिया कहते हैं। जकरिया 3:7, जकरिया 3:7। इफ यू लुक इनटू द बाइबल, आखिरी के भाग में है पुराना नियम का, अगर आपको मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आखिरी के भाग में है जकरिया 3:7। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, लेकिन अगर आपको पहले मिल गया है तो आप भी पढ़ सकते हैं। 3:7 में मुझको मिल गया है तो मैं पढ़ रहा हूँ। सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पे चले, कृपया ध्यान दे, सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है कि अगर तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास
खड़े हैं. What a wonderful promise that is. I would like somebody to read that in English. अगर हमारे पास इंग्लिश बाइबल है तो कोई भी हमारे बीच में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. Zechariah 3 verse 7. I don't have an English Bible with me, so I request anybody who is having an English Bible can read this particular text for me, please. Zechariah 3:7. Thus said the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shall also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. What a wonderful promise. What a wonderful promise. So the place where you must start witnessing is your home. अपने घर से इसको चालू करें. यीशु मसीह का गवाही देना अपने घर से चालू करें, अपने परिवार के बीच से चालू करें, और जब हम अपने परिवार में इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम बाहर में भी इस कार्य को सही प्रकार से कर सकेंगे. हमारे परिवार के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, फिर अपने पड़ोसी के साथ, फिर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारे कलीग लोग के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ. अगर हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या अगर हम एक नॉन क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में जीते हैं तो हमारे सहपाठी लोग के साथ हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं यीशु मसीह का गवाही के साथ. That is very important. We have to be witnesses for Christ. So, what is the world needing today? तो आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? हम लोग सबको जानते हैं, मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूँ. What the world needs is today is the love of God. You know, people are searching for peace. लोग शांति चाहते हैं लेकिन उनको शांति नहीं मिलती. लोग प्रेम को ढूंढते हैं लेकिन उनको प्रेम नहीं मिलती. लोग सुख चाहते हैं लेकिन लोगों को सुख नहीं मिलता, क्योंकि वे लोग गलत स्थानों में ढूंढ रहे हैं और उनको किसी को बताना है. उनको ये जानकारी किसी से मिलना है, और वो जानकारी कौन देगा? हम देंगे. हम लोग लोगों को बताएंगे, हम लोग अपने दोस्तों को बताएंगे कि सच्चा शांति, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है. और कोई शक के बिना, कोई दो राय के बिना नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सच्चा प्रेम और सच्चा शांति हमें यीशु मसीह ही दे सकता है. There is not a speck of doubt about it. True love, true peace can be found only in Jesus Christ. हम क्यों जानते हैं? हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को चखा है. मैं ये सवाल तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने कोई उपस्थित हैं हमारे परिवार के सदस्य, सबों ने यीशु मसीह का प्रेम को चखा है, सबों ने यीशु मसीह के सामर्थ को अनुभव किया है. हम लोग सब एक जीता जागता गवाही है यीशु मसीह के प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह के सामर्थ के लिए. तो जहीं कहीं हमें मौका मिलता है तो अपने आप को हम चुप ना रखें, क्योंकि इसी कार्य के लिए हम चुने गए हैं. We have been chosen. Rather, I can say we have been bought by the price of the blood of Jesus Christ. And when we are bought by the price of the Jesus Christ, by his blood, we cannot say no to the responsibility which God has given us. हम लोग ना नहीं कह सकते. तो बहुत लोगों को ये मैसेज मिलना है, और हालांकि ये भी बहुत है, बहुत जगह हमने सुना है कि बहुत लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत लोग बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वे लोग समझ नहीं पाते. बहुत लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, लेकिन वे लोग यीशु मसीह को सही प्रकार से जान नहीं सकते. बहुत लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन वे लोग यीशु मसीह को सही जगह नहीं ढूंढ पाते.
हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी जगहों में हम लोग को स्टेप इन करना है। जहाँ हम देख रहे हैं कि लोग यीशु मसीह को ढूंढना चाह रहे हैं, हम उन लोगों के और यीशु मसीह के बीच का जो गैप है, हम उस गैप को क्लोज करेंगे। वी विल बी द ब्रिज बिटवीन द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर गॉड एंड गॉड। ऑलराइट, वी विल ब्रिज दैट, और तब हमारा कार्य इस दुनिया में पूरा होता है। अगर यीशु मसीह का काम को हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आज शाम को मैं यही कह के अपना वेस्पर्स अंत करना चाहता हूँ कि ये दुनिया को यीशु मसीह चाहिए। द वर्ल्ड नीड्स जीसस, बिकॉज विदाउट जीसस देयर इज नो होप। यीशु मसीह के बिना इस दुनिया में कोई आशा नहीं है। स्वर्गराज का आगमन होने वाला है, समय हमारे पास बहुत कम है, और ये जिम्मेदारी जो हमें दी गई है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई शैतान के बहकावे में आके अपना स्वर्ग राज जाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो खो दे। यीशु मसीह चाहता है कि सब कोई स्वर्ग जाए, सब कोई पाप से छुटकारा पाए, सब कोई अनंत जीवन का एक्सपीरियंस कर सके। और हम जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, यीशु मसीह के काम में हाथ बटाए, पूरे मन से हाथ बटाए, पूरे दिल से, पूरे ताकत से और पूरे हृदय से यीशु मसीह का काम में हाथ बटाए। ईश्वर हम सबको को आशीष दे जब हम अपने कामों को ईश्वर के लिए करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धन्यवाद। I would like to thank George Mamu for that wonderful message. I'll request Jeffrey and Jerry to come and give the closing song. Good evening and happy Sabbath, everyone. The song which we are going to sing is entitled Jesus Paid It All, and it's found in the hymnal, hymn number 184. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, I lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus
and after crimson stain, he washed it white as snow. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. I request Daddy to come and offer the closing prayer. Father in heaven, thank you for giving us Sabbath. Thank you for your presence and the message that we had. We pray that thou continue to be with us, that we may always know your presence that is with us throughout the week. And now the Sabbath has come. We come in your presence, especially on this Sabbath, and in our worship, in our prayer, in our songs. And as the believers, we get together from different places to one place and pray, and sing songs. Help us that we may come in your presence, hearing your words, sing praises, and continue to be with you in our daily experiences. Lord bless each one of us as today we are able to meet, hear your words in a different way. This technology that has come and is encouraging us that we can hear your words and come closer to you in our daily experiences. And especially in a meeting like this, though we are in homes, in different places, but the technology has brought us together. We can hear your words, we can see each other and talk with each other and know that we are worshiping you together. Father in heaven, strengthen us in faith, strengthen us in the message that we hear, so that we may always be in your presence, always be very close to you. We pray, Lord, bless the people who are suffering with the diseases that are spread throughout the world. But we pray that bless us that we may, in all circumstances, come in your presence whenever we can come. Hear our prayer, bless us with your blessings, so that we may continue to have faith, continue to be in your presence in all circumstances that we get together in prayer, in songs, in Bible readings, listening to the message. We pray that bless us, Lord, that we may always know that you love us and you are carrying us and you are we are in your presence. Bless us that we may learn to love you, and as we see each other with this technology, the faces, hear the words, encourage us that we may be prepared for that glorious experiences that we can see each other if we are faithful in your words, if we are faithful in our daily experiences, that we may see and talk with each other in the kingdom that you have gone to prepare for each one of us. We pray, Lord, bless us that we may love you more
and come closer to you in our daily experiences, in our every opportunity that we get, like we had this evening. We pray thou bless us that we may love you, we may come closer to you, forgive our sins and shortcomings, help us to be faithful, help us to be in your care and keeping. We pray in Jesus' name. Amen. Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign.